السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 554 554 سورہ الاحزاب آیات 21 تا 27۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر تفکر کرنا، اس کے معنی سمجھنا، اس کے مفہوم پہ غور و فکر کرنا، اور قرآن کریم کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنا، یہ ہے قرآن کریم فرض۔ 21واں پارہ سورۃ الاحزاب، تیسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بے شک ہمیشہ سے تھا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ تعالی کی اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا ایمان والوں نے لشکروں کو، قالوا کہنے لگے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے وعدہ فرمایا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور سچے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں بڑھایا ان کو مگر ایمان اور فرما برداری میں۔ من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچ کر دکھایا جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس پر۔ فمنہم من قضى نحبہ، پس ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے پوری کر لی اپنی نذر۔ ومنہم من ينتظر، اور ان میں سے کچھ انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور نہیں کچھ بھی بدلنے والے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کی بدولت۔ ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقوں کو انشاء اگر چاہیں، او یتوب علیہم، یا مہربانی فرما دے ان پر۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی، لم ينالوا خیرا، نہیں پا سکے وہ کوئی بھلائی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور لڑائی میں اللہ کافی ہو گئے مومنوں کو۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قوت طاقت والے غالب ہیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان کافروں کی اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ ان کا تم قتل کرتے ہو۔ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروہ کو تم قید کر لیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمینوں کا۔ وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا۔ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وہ ان زمینوں کا بھی جہاں تم نہیں پہنچے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ غزوہ احزاب کی تفصیلات کے حوالہ سے آج تیسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں غزوہ احزاب یعنی خندق والی جنگ کے اسباب بیان کیے گئے۔ دوسرے سبق میں جو کل کی ہماری گفتگو تھی، غزوہ احزاب کے بعد کے حالات
اور اس کا پس منظر فتح کا وہ بیان کیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں یہ احزاب کے حوالہ سے آخری سبق ہے، اس کے بعد گفتگو کا روئے سخن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی طرف کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اب ان ایمان والوں کو خراج تحسین عطا کرتے ہوئے ان کی شان، منزلت اور ان کی عظمت کا تذکرہ بیان فرماتے ہیں، جنہوں نے اس کھٹن اور دشوار حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کر کے اسلام کی خاطر ہمہ قسم کی قربانی کے لیے تیاری اختیار فرمائے رکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ایک اصول، ایک قانون وضع کر دیا گیا، اگرچہ کہ گفتگو احزاب کی جنگ کے حوالہ سے تھی، لیکن یہ ہر مسلمان اور مومن کے لیے زندگی کے ہر شعبہ کے اندر یہ ایک اصول وضع کر دیا گیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تم اپنا آئیڈیل کسی کو بنانا چاہتے ہو، اگر تم کسی کو اپنے لیے نمونہ سمجھنا چاہتے ہو، کسی کی اقتداء میں چلنا چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ احزاب کے موقع پہ اگر اس کی مثال لیں تو وہ جب کھدائی کے دوران وہ بڑی چٹان آئی تھی، میں نے پہلے سبق میں عرض کیا تھا، اور صحابہ کرام سے وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، ایک تو بھوک اور افلاس، دوسرا وہ سخت کافی تھی، تو سرکار نے ایک ہی ضرب سے اس چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دیے تھے۔ اور جب رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی یہ شکایت لے کے آئے کہ حضور بھوک بڑی لگی اور یہ دیکھیے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک ہٹا کے فرماتے ہیں، یہ دیکھو تم نے ایک باندھا، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو نمبر 1 حضور کی ذات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ کمانڈر ان چیف، سپاہ سالار جو ہوتا ہے، قائد اعظم جو ہوتا ہے، وہ اپنی فوج کے لیے، اپنی عوام کے لیے بہترین نمونہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر کمانڈر ان چیف کے اندر ہی غلطیاں ہوں گی تو پھر یقیناً باقی فوج اس خوش دلی اور دل جمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ نمبر 1 تو یہ اشارہ اس طرف ہے۔ دوسرا، زندگی کے ہر پہلو میں رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کو ہمارے لیے لازم فرما دیا گیا۔ سورہ نور میں اس سے قبل ہم پڑھ آئے ہیں، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم حضور کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم کے 40 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا، بلکہ سورۃ النساء میں تو وعید سنائی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ کریم اس کو جہنم میں گرا دیں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک سرسری سی نگاہ، چونکہ ہم نے احزاب کا آج آخری سبق پڑھنا ہے، جنگ کے حالات کے حوالہ سے اس عنوان کا آخری سبق ہے، ایک سرسری سی نگاہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح حضور کی ذات اقدس کو اپنے لیے نمونہ سمجھا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن وضو فرما کے اٹھے تو ایسے آسمان کی طرف دیکھ کے حضرت عثمان مسکرا دیے۔ دوسرے صحابہ کرام عرض کرنے لگے، امیر المومنین کبھی آپ نے پہلے نہیں ایسے کیا، آج کیا بات ہے، کوئی انداز الگ ہے یا کوئی بات یاد آئی کہ وضو کر کے آپ اٹھے اور آپ نے ایسے دیکھا بھی ہے اور آپ مسکرائے بھی ہیں؟ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، مجھے آج حضور کی ایک ادا یاد آ گئی تھی۔ ایک دن میں سرکار کے ساتھ تھا تو حضور بھی وضو کر کے اٹھے اور آپ نے یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے تھے۔ چونکہ حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، میرا جی چاہا میں آج حضور کی اقتداء میں اسی انداز میں مسکرا لوں، میرے اللہ کریم مجھے اس پہ بھی ثواب نصیب فرمائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق میں نے سیرت کی کتب میں پڑھا ہے کہ صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک درخت کے پاس سے گزرے تو یوں سر جھکا کے جیسے بندہ ٹہنی سے بچ کے گزرتا ہے،
यूं करके सर नीचा करके हजरत उमर गुजरे। सहाबा किराम अर्ज करने लगे अमीरुल मोमिनीन दरख्त की टहनियां बहुत ऊंची हैं, तो फिर यूं गुजरने का मकसद? तो फरमाने लगे आज इस दरख्त की टहनियां ऊंची हैं, एक वक्त था इस दरख्त की टहनियां बहुत लटकी हुई थी और उस वक्त मैं हुजूर के साथ यहां से गुजरा था और हुजूर यूं करके अपने सर को झुका के गुजरे थे कि टहनी सर में न लग जाए। आज अगरचे के वो दरख्त की टहनियां ऊपर जा चुकी हैं, दरख्त बड़ा हो जाता है वक्त के साथ, लेकिन यहां से गुजरा तो हुजूर की याद आ गई, तो जी चाहा मैं भी हुजूर की अदा को अपना लूं, क्योंकि सरकार की जिंदगी तो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। फिर उसके बाद सहाबा किराम और सहाबियात रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने हर कदम पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी का हक अदा करके दिखाया है। हजरत माकल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु की मैं अक्सर आपको मिसाल सुनाता हूँ, सहीह बुखारी में आता है। इनकी हमशीरा थी फातिमा नाम की, उनको तलाक हो गई, रजाई तलाक थी, रुजू की मुद्दत बाकी थी, बस वो मुद्दत भी इसी तरह गुजर गई, देखने दिखाने में, गुफ्तगू करने में, कोई एक दो आदमी दरमियान में डालने में मुद्दत गुजर गई। अब इस्लाम को उसूल यह है कि अगर रुजू वाली तलाक की इद्दत की मुद्दत गुजर जाए तो दोबारा नए सिरे से मियाँ बीवी का निकाह नए हक मेहर से हो सकता है। हजरत माकल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके बहनोई ने पैगाम भेजा कि मैं दोबारा ये निकाह बहाल करना चाहता हूँ, मेहरबानी फरमाइए। हजरत माकल फरमाने लगे अल्लाह की कसम मैं अब अपनी बहन का निकाह तुझसे नहीं करूंगा, तुझे इज्जत दी तूने मेरी बहन को तलाक दे दी। जब हुजूर को मालूम हुआ तो आपने हजरत माकल बिन यसार को बुला लिया, फरमाया माकल क्यों ये लफ्ज बोले हैं? एक फितरती बात है, हर भाई की गैरत का तकादा होता है। हुजूर बस इसने मेरी बहन को तलाक दे दी। आपने फरमाया क्या तूने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा कि जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो फबलगना अजलहुन्ना फला तादुलुहुन्ना यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़ौ बैनहुम बिल मारूफ, कि जब मियाँ बीवी आपस में निकाह करना चाहे तुम कौन होते हो रोकने वाले? अल्लाह अकबर। ये हुजूर के उसवाए कामिला को अपनाने की ऐसी जबरदस्त मिसाल थी। वो जो अभी कसम उठा रहे थे कि मैं नहीं अपनी बहन का दोबारा निकाह इससे करूंगा, अर्ज करने लगे हुजूर आप गवाह हो जाइए मैंने दोबारा अपनी बहन इसको दे दी। तो इसलिए जब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी के हर पहलू में वो माशरत हो, वो माईशत हो, हमारा चलना फिरना ओढ़ना बिछौना, हमारे इनकम के रिसोर्सेज, हमारे मुसर्रफात अखराजात खर्च करने के असबाब सारे के सारे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के उसवाए हसना के मुताबिक होंगे तो कामयाबी होगी, अगर ना कामयाबी नहीं होगी। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। हुजूर का आइडियल होना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मुबारका का हमारे लिए राह अमल बनना। तो अल्लाह फरमाते हैं लेकिन किसके लिए है? तीन खूबियां होनी चाहिए। अब मेरा भी जी चाहता है कि मैं गुलाम रसूल बन जाऊं, आपका भी जी चाहता है हम सब गुलामाने रसूल बन जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उसके लिए कुछ प्रैक्टिकली लाइफ अपनाने की जरूरत है। करेंगे क्या? तीन बातें हैं। नंबर एक, लिमन कान यरजुल्लाह, जो अल्लाह को चाहे, लिमन कान यरजुल्लाह, जिसे अल्लाह की उम्मीद हो, हर काम में अल्लाह की निस्बत, हर बात में अल्लाह की निस्बत, चलते फिरते आंखें बंद करे, लफ्ज अल्लाह लिखा दिखाई दे, दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह बोलती रहे। किसी वक्त अगर गफलत ढांपने लगे तो फौरन इसका दिल झटके से अल्लाह कह के इसको मुतवज्जे कर देता है। अगर किसी वक्त राह गुजरते इसके कानों में लफ्ज अल्लाह की सदा सुनाई दे, इसके हरकत व सकनात जामिद व साकिन हो जाती है। वो लोग हैं जिनको अल्लाह की उम्मीद है। अल्लाह की उम्मीद से मुराद अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की उम्मीद से मुराद अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना, अल्लाह की रजा में खुद को राजी रखना, अल्लाह के फैसलों पे सरे तस्लीम खम करना। जिसमें ये चीजें आएंगी उसके लिए रसूलुल्लाह अलैहि सलाम बेहतरीन नमूना है। नंबर दो, वलियौमल आखिरा, जैसे अल्लाह की उम्मीद वैसे क़यामत की उम्मीद रखी जाए। नंबर तीन, वज़करुल्लाह कसीरा,
कसरत से अल्लाह का जिक्र करता रहे, अल्लाह के जिक्र में खुद को मशगूल रखे, अल्लाह के जिक्र में खुद को मसरूफ रखे, अल्लाह के जिक्र से अपनी जुबान को रत्ब रखे, अपने दिल को आबाद रखे, अपनी सोचों का महवर और मरकज और अपने दिल की ख्वाहिशात का जाविया सिर्फ अल्लाह के जिक्र को बना ले। यकीन कीजिए ये दुनिया में चलता फिरता जन्नती है, बल्कि ये ऐसी बुलंदियों पे उड़ता दिखाई देगा कि जिसके मुकाम को शायद ही कोई नसीब वाला पहुंचता हो। वज़करुल्लाह कसीरा। मैं सहीह बुखारी के रेफरेंस से अक्सर आपको हुजूर का तरीक़ा कार बताया करता हूँ, मामूल बताया करता हूँ। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही। हुजूर हर सांस में अल्लाह का जिक्र फरमाया करते थे, हुजूर हर आन में अल्लाह का जिक्र फरमाया करते थे, हुजूर हर धड़कन में अल्लाह का जिक्र फरमाया करते थे। इसलिए जो दम गाफिल सो दम काफिर, वो वक्त जाया हो रहा है जो अल्लाह की याद से मामूर न हो। क़यामत का दिन होगा, ज़ाकिरीन का इतना मुकाम और मर्तबा है, जब मेरे अल्लाह करीम इनको ज़ियारत और दीदार के जाम भर भर के पिलाएंगे, नूर के हिजाब को हटा के अपने चेहरे अक़दस की ज़ियारत करवाएंगे। आप सोचिए तो सही, मैं अभी रात एक किताब में पढ़ रहा था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नूर से अल्लाह का अर्श रोशन है। अल्लाह के यहाँ दिन और रात नहीं है, अल्लाह के यहाँ रोशनी अल्लाह के नूर की सबब है। तो आप अंदाजा कीजिए कि अभी वो नूर के हिजाब के अंदर है। जब हुजूर से सवाल हुआ था कि आपने अल्लाह ताला को देखा, फरमाया मैंने वहां सिर्फ एक हिजाब देखा है नूर का, उस हिजाब के पीछे भी एक नूर है, और मैं कैसे देख सकता हूँ। हदीस में आता है अल्लाह करीम अगर वो हिजाब हटा दे, अल्लाह के जलाल की शुआएं कायनात की हर चीज को जला के भस्म कर दे। आप अंदाजा कीजिए ये कसरत जिक्र करने वालों को क़यामत वाले दिन जब ऐसे जाहो जलाल वाले चेहरे अक़दस की ज़ियारत होगी, उन आंखों की खुश नसीबी का आलिम क्या होगा। लेकिन इतने बड़े शर्फ के बावजूद ये अल्लाह वाले, ये अहले जिक्र फिक्र लोग तमन्ना करेंगे। क्या तमन्ना करेंगे? जन्नत में तो कोई हसरत बाकी नहीं रहेगी, फिर क्या तमन्ना करेंगे? रब की रिजा मिल गई, रब की खुशनुदी मिल गई, अल्लाह का दीदार मुयस्सर आ, क्या तमन्ना करेंगे? एक तमन्ना करेंगे, काश दुनिया में जो वक्त जिक्र के बगैर गुजरा वो भी जिक्र में गुजर जाता। जो जिक्र करते रहे हैं उसकी बदौलत इतना कुछ मिला है, तो जो लम्हा किसी वक्त खाली गुजर जाता था, काश ये हसरत करेंगे, काश हमारा वो वक्त भी जिक्र में गुजरा होता। मैं पंजाबी की मिसाल अक्सर आपको देता हूँ, हाथ कार वल दिल यार वल। बज़ाहिर आप बाइक राइड कर रहे हैं, बज़ाहिर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बज़ाहिर आप अपनी दुकान पे बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कारखाने में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, लेकिन कम से कम इसका ताल्लुक तो अल्लाह के साथ रखें। ये तो अल्लाह अल्लाह पढ़ता रहे, ये दिल तो अल्लाह की याद में मशगूल रहे। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वज़करुल्लाह कसीरा। कसरत से जिक्र करने वालों के लिए हुजूर की ज़ात तय्यबा बेहतरीन नमूना है। सुबहानल्लाह। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, फिर उन मोमिनीन को अब सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। जब भी कोई जंग होती है बाद में कहा जाता है जी ये बंदा जो है इसकी बड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, ये बड़ा अच्छा लड़ा लड़ाई के अंदर, ये बड़ा अच्छा इसने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब उसको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, नक़द इनाम दिए जाते हैं। सहाबाए किराम जो मुमिनून मुफ्लिहून मुहतदून फाइजून के दर्जात पे फाइज थे, अब अल्लाह करीम अहज़ाब के बाद उनको सर्टिफिकेट जारी फरमाते हैं। सर्टिफिकेट क्या है? वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, पहली बात उनके ईमान की गवाही अल्लाह करीम ने अपनी जुबान मुबारक से दी, वो मोमिन हैं। उन मोमिनीन ने जब लश्करों को देखा, कालू, कहने लगे, हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह तेरा शुक्र है हमें मौका मिल गया, अल्लाह तेरा शुक्र है हमें मौका मिल गया वादों को सच करके दिखाने का। ओहद जो इससे पहले हुई थी सन 3 हिजरी में, ओहद के मैदान में वो हजरत अमर बिन जमू एक टांग से लंगड़े थे, तो आप खजूरों का एक गुच्छा था हाथ में, कच्ची खजूरों का,
उसको खाते हुए आ रहे थे। जब ओहद में पहुंचे हुजूर से फरमाने अर्ज करने लगे, हुजूर अगर मैं अल्लाह की राह में लड़ूंगा क्या मिलेगा? फरमाया जन्नत मिलेगी। खजूरें वहीं फेंक दी, कहने लगे हुन जाके जन्नत ही खावांगे खजूरा इंशाल्लाह। एक टांग से लंगड़े थे, लेकिन जब मैदान में गए और कुफार के खिलाफ लड़े, शहीद हो गए। मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं देख रहा हूं अमर बिन जमू जैसे लंगड़ाते लंगड़ाते मैदान में आए थे, ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते अल्लाह की जन्नत में जाके खजूरें खा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने शुक्र किया था, या अल्लाह कोई ऐसा मौका बना है, या अल्लाह कोई मुहाज ऐसा खड़ा हुआ है। यही तो वादा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। और साथ अपनी जुबान से पता क्या कहते थे? वो मुनाफिकों की तरह ये नहीं कहा इन्ना बुयूतना औरा, हमारे घर खाली, हमें इजाजत दे दीजिए, पैसे नहीं है, दाने नहीं है, घर में राशन नहीं है, मेहरबानी कीजिए हमें जान। इन्होंने कहा था वह सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह भी सच्चे हैं, रसूलुल्लाह भी सच्चे हैं। कैसा ईमान का मायार! अल्लाह हमें भी ये नसीब फरमा दे। अल्लाह भी सच्चे हैं, अल्लाह के रसूल भी सच्चे हैं। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा, इनको बढ़ा दिया इस जज्बे ने ईमान में और फर्मा बरदारी में। मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू, उनमें से कुछ मोमिन ऐसे हैं जिन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। सुबहान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, ये आया मुबारका मेरे चाचू के मुतालिक नाजिल हुई है। इनके चाचू का नाम था अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बदर की लड़ाई में किसी वजह से वो शामिल नहीं हो सके थे, रह गए थे, और उनको बड़ा कलक था कि मुझे ये शर्फ नहीं मिला। आइंदा जब मुहाज खड़ा होगा तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की फर्मा बरदारी में बहादुरी के जौहर दिखाऊंगा। ओहद बपा हो गया। मैदान की तरफ जा रहे हजरत अनस बिन नजर, हजरत अनस के चचा जो थे रज़ी अल्लाह तआला, रस्ते में हजरत साद मिले, पूछने लगे अनस किधर जा रहे हैं? कहने लगे वो देखो वो ओहद का पहाड़ है ना, उसके पार मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। आज भी आप जब हज उम्रा पे जाते हैं और मदीना तैयबा की ज़ियारत के सिलसिला में जब मैदान ओहद में आप जाते हैं, यकीन कीजिए, मैं अपना एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ, मुझे तो आज भी वहाँ पे रूहानियत बरसती नजर आती है। वहाँ पे आज भी सहाबा किराम का वो जज्बा वफा नजर आता है, ऐसे कि जैसे ओहद वालों ने अपने खून के साथ क़यामत की सुबह तक ये तारीख रकम कर दी है। मैदान ओहद में जहाँ आज भी उन सहाबा की कब्र मुबारक मौजूद है, उस मैदान में खड़े हो जाए वही नक्शा सामने होता है। इधर वो रिमा थी, वो चोटी थी जहां से हमला हुआ, ऐसे सहाबा लड़े। तो हजरत अनस बिन नजर सैयदना साद को फरमाने लगे, वो मुझे खुशबू आ रही है ओहद के मैदान में जन्नत की, मैं खुशबू लेने जा रहा हूं, मैं जन्नत में जा रहा हूं। गए और कुफार के खिलाफ लड़े। कितना लड़े? 80 जख्म हजरत अनस बिन नजर को आए, 80 जख्म। इवन के आपके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं पहचाना जाता था। ये जो उंगलियों के पोरे होते हैं, आपकी बहन ने उंगलियों के पोरों से शिनाख्त की थी कि ये मेरा भाई अनस बिन नजर है। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं ये हैं वो लोग मिनल मोमिनीन रिजालुन, इनके मुतालिक की आयत उतरी थी हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह तआला। इसी तरह हजरत मूसा बिन तलहा एक सहाबी हैं, वो फरमाता है मेरे अब्बा जान हजरत तलहा थे, उनके मुतालिक भी अल्लाह ने यही हुक्म नाजिल फरमाया था जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और ये आयत पढ़ रहे थे मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैहि, वो लोग जिन्होंने अल्लाह से किए वादे पूरे कर दिए, मोमिन मर्दों में से है। एक सहाबी अर्ज करने लगे हुजूर वो कौन है? मेरे अब्बू तलहा उधर से आ रहे थे, मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, सरकार ने मिंबर पे खड़े फरमाया वो जो बंदा आ रहा है ना, ये उन लोगों में है जिनके मुतालिक कुरान कहता मिनल मोमिनीन रिजालुन, कुछ मोमिन मर्द ऐसे भी हैं सदकू मा अहदुल्लाह, जिन्होंने अल्लाह से किए वादे पूरे कर दिए। अल्लाह करीम तमाम सहाबाए किराम पे राजी हो जाए और अल्लाह करीम अपनी रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमा दें। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, उनमें से कुछ हैं जिन्होंने अपनी नज़र पूरी कर दी। वमिनहुम मन यंतज़िर, कुछ ऐसे हैं जो इंतजार में बैठे हैं किस दिन ये जान अल्लाह के काम आ जाए, किस दिन ये जान रसूलुल्लाह की हुर्मत पे काम आ जाए, किस दिन ये जान दीन के लिए काम आ जाए। वमा बद्दलू तब्दीला, वो कुछ भी तब्दील नहीं करते, अपने वादे पूरे करने वाले हैं। लियज्ज़ी अल्लाहु स्सादिकीन बिसिद्क़िहिम, ताकि अल्लाह करीम सच्चों को उनके सच का बदला दे दे। मयुअज़्ज़िबल मुनाफिकीन इंशाअ, अगर अल्लाह चाहे मुनाफिकों को अजाब दे दे, और यतूब अलैहिम, या अल्लाह की मेहरबानी उन पे हो और उनको निफाक के रोग और बीमारी से तौबा की तौफीक मुयस्सर आ जाए। इन्नल्लाह
कान गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला हमेशा से बख्शने वाले बड़े मेहरबान हैं। मेरे करीम मालिक हमें भी बख्शिश और मेहरबानियां नसीब फरमा दे। हमारी दुनियावी हालात में अल्लाह की मेहरबानी शामिल हो जाए, हमारे उखरवी मामलात में बख्शिश का इनाम मिल जाए, ये दुआ जरूर फरमाया करें। आगे चलिए, वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफरू बिग़ैज़िहिम, अल्लाह करीम ने काफिरों को उनके गुस्से समेत लौटा दिया। लम यनालु खैरा, उन्हें कोई खैर नहीं मिली। ये जो अहजाब की लड़ाई हुई है, मैंने बताया था दरमियान में तो वो 180 फुट लंबी 15 फुट गहरी खंदक खोद दी गई थी, तो इतना आसान नहीं था मदीना शरीफ में चढ़ाई करना। कुछ लोगों ने जुर्रत की थी। एक बंदा था, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या और इसमें एक सबक भी है हमारे लिए। एक बंदा था अमर बिन अब्दे वद, 1000 बंदे के मुकाबिल अकेला लड़ता था। ये इतना पहलवान आदमी था काफिरों का। इसने क्या किया, इसने दावत मुबाजरत दी। कहने लगा है कोई मुसलमानों दे विच मेरे खिलाफ आए, मेरे मुकाबले। इधर मुसलमानों की तरफ से कौन गए, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला। वो 1000 के मुकाबले में अकेला खुद को पहलवान समझता, तो इधर शेर खुदा मौजूद है, हैदर कर्रार मौजूद है। हजरत अली अल मुर्तज़ा ने एक ही वार करके उसके टोटे कर दिए, एक ही वार में उसको कत्ल कर दिया, उस अमर बिन अब्द वद को। अब चूंकि वो उनका पहलवान आदमी था और बड़े ऊंचे हसब नसब वाला था काफिरों का, एक बात याद रखिएगा यहाँ पे जो सबक आमोज है। जब ये जंग का मामला खत्म हुआ है ना, हज़ाब वाला महीने के बाद जब जाने लगे हैं, काफिरों ने एक दरख्वास्त की हुजूर की खिदमत में। कहने लगे वो हमारे पहलवान की लाश उधर पड़ी है आपके पास उस दिन से, वो हमें मेहरबानी कीजिए दे दीजिए, 10,000 दिनार ले लीजिए। 10,000 दिनार एक अमाउंट है बहुत बड़ी। और फिर उन अय्याम में जब अहज़ाब की जंग हो रही है, जेबों में पैसे ही नहीं थे, भूख का आलिम था मुसलमानों के ऊपर। 10,000 की अमाउंट एक बड़ी रकम बनती है। कहने लगे 10,000 दिरहम ले लीजिए, हमारे पहलवान की लाश हमें दे दीजिए। हुजूर ने क्या फरमाया था, फरमाया मुफ्त में उठा के ले जो, हम मुर्दों की कमाई नहीं खाते। ये बहुत बड़ा एक सबक है इसमें उम्मत के लिए भी। मुफ्त में ले जाओ लाश उठा के, हम मुर्दों की कमाई नहीं खाते, हम मैयतों की कमाई नहीं खाते, ले जाओ लाश को उठा के। तो इसलिए अल्लाह करीम फरमाते हैं इनको अल्लाह ने मायूस करके लौटा दिया। लम यनालु खैरा, इनके हाथ कुछ भी नहीं आया। वकफ़ल्लाहुल मुमिनीन अल क़िताल, मोमिनों को अल्लाह काफी हो गई इस जिहाद लड़ाई में। वकानल्लाहु कविय्यन अज़ीज़ा, असल ताकत तो अल्लाह की, गलबा अल्लाह का है। वअंज़ल, एक और मामला इसी जंग का, वो क्या था, ये जिन लोगों ने बदशिकनी की थी यहूदियों ने, अहले किताब ने, अल्लाह करीम फरमाते हैं वअंज़ल अल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताबी मिन सयासीहिम, उतार लिया अल्लाह ने उन लोगों को अहले किताब में से जिन्होंने मदद की थी काफिरों के मुसलमानों के मुकाबले में। जरा दोबारा अब वापस जाइए, जो मैंने इसके मुहर्रकात बयान किए थे, इत्तेहादी अफवाज जो बनी थी। यहूद के 3 कबाइल थे, बनु कैनका, बनु नज़ैर और बनु कुरैज़ा। 2 कबाइल तो पहले बाहिर थे। अब ये बनु कुरैज़ा वाले मदीना शरीफ के अंदर मौजूद थे और बाकायदा इनके साथ एग्रीमेंट था कि तुम मुसलमानों के खिलाफ किसी की मदद नहीं करोगे। जब इत्तेहादी फौजें बन रही थी तो कुरैज़ा वालों ने बदशिकनी की। बदशिकनी कैसे की, इनका सरदार था काब बिन असद, उसके पास बनु नुज़ैर के सरदार हई बिन अख्तब आया, वो भी यहूदी सरदार था। उसने दरवाजा खटखटाया, मैं हई आया हूं, दरवाजा खोलो, बात करनी है। अब काब बिन असद समझ गया कि जारी बात है आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, बात यही करनी होगी कि मुसलमानों को धोखा दें। अंदर से ही इस सरदार ने जवाब दिया, नहीं मैंने दरवाजा नहीं खोलना, मुझे पता है तुमने जो बात करनी है। कहने लगे यार दरवाजा तो एक बारी खोल। उसने दरवाजा खोला, बैठ गया कि नहीं तुम भी मुसलमानों को धोखा दो, हम सारे मिलकर इनको भगाते हैं यहाँ से। बड़ी बातें की कि जिल्लत और रुसवाई होगी, ये होगा मुसलमानों के लिए, हमें इज्जत मिलेगी। काब बिन असद ने उस वक्त तक अभी एतदाल का साथ देने वाला था। कहने लगा बात सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह में मैंने सिद्क़ व सफ़ा के सिवा कुछ नहीं देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो ही नहीं सकता कि जिल्लत मुसलमानों का मुकद्दर हो, जो अंदर का सच्चा इंसान हो हमेशा इज्जत अल्लाह उसका मुकद्दर फरमाते हैं। मैंने तुम्हारी बात नहीं माननी, लेकिन
इंसान आखिर इंसान होता है। हई बिन अख्तब ने मना ही लिया, कहने लगा तुम एक दफा गद्दारी करो मुसलमानों से, तुम धोखा दो मुसलमानों को, मैं वादा करता हूं अगर तुम कैद हुए तो मैं तुम्हारे साथ कैद हो जाऊंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। जब इसने इतनी बात कही तो वो सरदार जो बनु कुरैजा का था, काब बिन असद, वो मान गया, कहने लगा ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऐन उन हालात में जब एक एक फौजी की जरूरत थी, कुरैजा वालों ने बदशिकनी कर दी, हुजूर को इंटेलिजेंस ने इत्तला दी, कुरैजा वालों ने बदअहदी कर दी है। हुजूर ने 4 सहाबा की ड्यूटी लगाई कि मेरे सहाबा आप ऐसा कीजिए, आप जाइए हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हजरत साद बिन उबादा, हजरत साद बिन मुआद रजी अल्लाह ताला और एक सहाबी और थे, इस वक्त मेरे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा। इन 4 लोगों का एक डेलीगेशन बना के हुजूर ने भेजा और साथ ताकीद फरमाई थी अगर वाकई ये खबर सच्ची हुई तो आके मुझे ऐसे इशारे से बताना, लोगों के सामने ना बताना, कहीं लोगों के हौसले ना टूट जाएं। एक पावर थी पूरी इन लोगों की, कुरैजा वालों की, और मुसलमानों को इतनी तो उम्मीद थी कि हम यहां लड़ रहे हैं, पीछे हमारे घर महफूज है, हमारी खवातीन महफूज हैं। क्यों कि यहूदी लोग वादा नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने वादा किया है। जब सहाबाए किराम ने जाके तहकीक की और आके हुजूर को वो साइन दे दिया, सरकार काम खराब हो गया, कुरैजा वालों ने बदशिकनी कर दी है। अब हुजूर ने जब अहजाब का तो मुकाबला किया, उन हालात को तो फेस किया ही किया। हुजूर अहजाब के बाद वापस आके हजरत उम्मे सलमा के घर थे, अपनी बीवी मोहतरमा के घर, आप अपनी तलवार उतार के, हथियार उतार के गुस्ल फरमा रहे थे, जिब्रील आ गए। जिब्रील कहने लगे अभी फरिश्तों ने हथियार नहीं उतारे, आपने क्यों उतारे? सुभान अल्लाह, ये थी वो गैर मरई ताकतें जिनका मैं 2 दिन जिक्र करता रहा हूं कि गैर मरई ना दिखने वाली ताकतों के साथ भी अल्लाह ने मदद फरमाई। जिब्रील कहने लगे अभी फरिश्तों ने हथियार नहीं उतारे, सरकार आपने क्यों उतारे हैं? अभी चलिए कुरैजा वालों की भी खबर लेनी है जिन्होंने बदशिकनी की है। लिहाजा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने 3000 सहाबाए किराम को साथ लिया, फरमाया असर की नमाज जाके उन्हें ना मोहल्ले च पढ़ाएंगे। कुरैजा वालों के पास पहुंच गए असर के वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहूद के दिलों में अल्लाह ने इतना रौब और दबदबा डाल दिया था कि मुसलमानों का सुन के ये अपने किलों के अंदर बंद हो के अंदर से कुंडियां लगा ली इन्होंने। हालांकि इनकी ताकत कोई थोड़ी नहीं थी, 1500 तलवारें इन्होंने तैयार रखी थी इमरजेंसी के लिए, 2000 नेज़े तैयार रखे हुए थे, 300 जिलें मौजूद थी, 500 ढालें मौजूद थी। और आपको ये सुन के हैरानगी होगी, इनके पास राशन इतनी मिकदार में जखीरा था कि 1 साल तक भी अंदर बैठ के खाते तो खाना खत्म ना होता। लेकिन हुजूर का रोब और दबदबा इतना था, 25 दिन के बाद ये लोग हथियार फेंक के बाहर आके अपनी शिकस्त तस्लीम करने पे मजबूर हो गए थे। तो अल्लाह करीम ने फिर क्या फरमाया? हुक्म दिया, फरमाया कत्ल कर दिया जाए इनको। और हजरत साद बिन मुआद रजी अल्लाह, जिनको तीर लगा था इस जंग के दौरान, और वो इसी तीर की, इसी जख्म की वजह से शहीद हो गए थे। यहूद वालों ने, कुरैजा वालों ने कहा था कि हम साद की बात मानेंगे, साद जो फैसला कर दे। हजरत साद से आया नहीं जाता था, जख्मी थे, खून बड़ा चलता था। एक सवारी पे सवार करके हजरत साद को लाया गया, फरमाया साद जरा इनका फैसला कर दो, पुराने तुम्हारे जानने वाले मोहल्लेदार हैं। हजरत साद ने पता क्या फैसला फरमाया? फरमाया सरकार इनके मर्दों को कत्ल कर दे, इनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बना ले और इनके अमवाल इकट्ठे कर ले, मुसलमानों के काम आएंगे। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया था, साद तुमने वही फैसला किया है जो 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह का फैसला है, अल्लाह भी यही चाहते हैं। अब यहाँ पे कोई आपसे सवाल कर सकता है, इल्हाद का दौर है, लोग इस्लाम पे बड़े एतराजात करते हैं। कोई ये एतराज कर सकता है जी जब उन्होंने हथियार फेंक दिए, माफी मांग ली, फिर उनको कत्ल क्यों किया? तो सबब सिर्फ बदशिकनी नहीं था, सबब यह था कि इन बदबख्त यहूदियों ने मुसलमानों की गैर मौजूदगी में इस्लामी खवातीन के ऊपर भी हमला किया था। मदीना पाक के अंदर बच्चों को इन्होंने अज़ियतें पहुंचाई थी, वादे इन्होंने तोड़े थे, इस्लाम के खिलाफ इन्होंने जितने सीक्रेट थे वो लीक करके इस्लाम को दबाने की कोशिश की थी, बुनियादें हिलाने की कोशिश की थी। बदले में इन लोगों को कत्ल कर दिया गया, इनके अमवाल मुसलमानों के हाथ बतौर माले गनीमत आ गए। वो हई बिन अख्तर जिसका मैंने पहले आपको बताया है कि जिसने कहा था कि जेब फड़े जावांगे फिर मैं भी तोड़े नाल, उसने है यहूदी था लेकिन उसने अपना वादा पूरा किया, उसने बाकायदा अपने आप को कैद कर लिया था अंदर इन्हीं लोगों के साथ। लिहाजा ये सारे मारे गए थे। हई बिन अख्तब की बेटी सुफैया वो मस्जिद नबी शरीफ में गुलामों के साथ जब लाई गई तो वो हुजूर को इनायत कर दी गई। हुजूर ने उनको आज़ाद करके उनसे निकाह फरमा के
انہیں ام المومنین ہونے کا اعزاز اور شرف نصیب فرما دیا تھا۔ یہ جنگ احزاب کے آخری وہ حالات ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ اتار دیے گئے اپنے قلعوں سے جنہوں نے بدشکنی کی، مدد کی کافروں کی، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان میں اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا گیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ان کے کچھ لوگوں کو تم قتل کر رہے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، کچھ کو تم قیدی بنا رہے تھے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، ان کی زمینوں کا تمہیں وارث بنا دیا، وَدِيَارَهُمْ، بنے بنائے گھر مسلمانوں کو مل گئے، وَأَمْوَالَهُمْ، مال بینک بیلنس مل گئے مسلمانوں کو، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، جس جگہ پہ ابھی پہنچے بھی نہیں تھے مسلمانوں کے قدم نہیں پہنچے تھے وہاں فتح کا جھنڈا لہرا گیا، وہ زمینیں بھی مال غنیمت میں تقسیم ہو کے مسلمانوں کے ہاتھ ان کی رجسٹریاں آ گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ کریم ہمیشہ سے ہر بات پہ قادر ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں۔ میرے کریم اللہ ہم سب کو قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کا فہم اور شعور نصیب فرما دے۔ ہم اللہ کی توفیق سے اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے دن کے باقی معاملات میں، ہماری زندگی کے معاملات میں، ہمارے گھروں اور کاروبار میں برکات کا، رحمتوں کا نزول فرما دے، ہمیں شر شیطان، شر انسان سے محفوظ فرما لے، ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب ہو، نرینہ اولاد کے آرزو مند لوگ اللہ کریم اپنی خاص رحمت سے انہیں نیک اور صالح زندگی والے خوبصورت بیٹے نصیب فرما دے۔ جن بہنوں کے بھائی نہیں اللہ نیک بھائی نصیب فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہمارے بچوں کو نیک فرما دے۔ ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے اللہ کریم نیک اسباب مہیا فرما دے، کاروباری مشکلات کو رفع فرما دے، رزق میں برکت، عمر میں برکت ہو، معاملات میں برکت ہو، بیماروں کو شفا نصیب ہو، اور اللہ دنیا سے جانے والوں کی بخشش فرما دے۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔